Hello my users, so welcome back to my channel that is called as Mathematics by Rumina, and in this video today we are going to understand about the part second of your 100 most important questions for JEE Mains, basically which I am covering your basic of if I talk Jan 2024 के सारे questions है इसके अंदर already, and you will not even believe मैंने बहुत अच्छे से बेटा इसके इकट्ठा करे हैं questions, some important and difficult PYQs बेसिकली ऑफ योर एवरी चैप्टर. तो हम लोग चैप्टर टू चैप्टर बात करेंगे ताकि कोई डाउट ही ना रहे और आपको भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आए. So I was going to move ahead, and in this video we are basically going to talk about which chapter, that is your, we are going to talk about sequence and series. Sequence and series. Basically बच्चा you should be comfortable with AP, GP, AGP. Okay. As you know AGP हमारे सिलेबस में नहीं है, but believe me अभी जान अटेम्प्ट में भी AGP आया था. सो यस AGP इसका मतलब क्या है, इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे पहले बेटा आपका GP और AP का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई थिंक दैट मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोन विद द फैक्ट कि हाँ हमें GP तो आता ही है. GP में आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा फॉर श्योर. ओके, so let's get back and let's understand the things that we are going to understand in this class today. So now what we have right now, bacha, right now basically we are going to understand one of the most important questions. Sorry, I think the setting is of this question is not perfect. I have not seen it. I think I just forget it to see that. Just give me a minute. Just give me a minute, everyone. I just have to set it a little bit. Yeah, done. That's it. Sorry for wasting your time. Let's get back. Let's understand this question and then try to solve it out. Let A and B be two distinct positive integers. Let A and B be two distinct positive real numbers. Let 11 term of a GP whose first term is A and the third term is B is equals to pth term of the another GP whose first term is A and the first term is A and cut it out, and fifth term is B. Then P is equal. So we just have to find the value of P basically. Let's work on the starting statement first of all. It says that if A and B be two distinct positive real numbers, let 11 term of a GP whose first term. So right now we're talking about the 11 term. That means we are talking about basically your AR 11 minus 1, that is 10, whose first term मेरे पास A है, ठीक है. थर्ड टर्म इज बी. बेटा आर निकालना है मुझे थर्ड टर्म बी दिया, मतलब कि ए आर स्क्वायर मेरा क्या है, बी है. मतलब कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, मतलब कि आर वुड बी इक्वल्स टू बी बाय ए की पावर 1/2. ठीक है, ये आ गया मेरे पास. तो आर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं बिकॉज मुझे बोला गया है दैट ए आर की पावर 10 बेसिकली 11 टर्म ऑफ अ जीपी इज इक्वल्स टू पी एट टर्म ऑफ अनदर जीपी. सो इट वुड बी ए कैपिटल आर, sorry, let's write it as capital AR, okay, because it's talking about another GP over here. So हमें another GP के लिए अपनी चीज़ों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. So it should be AR and यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, यहाँ पे I will be getting P-1 because P टर्म की हम लोग बात कर रहे थे. Okay, and the third term is B. उसका मैंने अपना R निकाल लिया. So मेरा R आया B upon A की पावर 1/2 is equals to okay pth term of the another GP whose first term is A. First term तो बेटा सेम है A and first term is A and the fifth term is B. Fifth term B है, मतलब कि A R की पावर 5 is equals to B है. So I know if I want to obtain R it would be basically your okay sorry fifth term है ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. So B upon A, so R would be equals to B upon A की पावर 1/4. So I will just write B अपॉन A की पावर 1/4, दैट वॉज योर R. और इसकी क्या है, P-1 टर्म है. सो लेट्स टेक P-1. अरे एक चीज़ से तो हम भूल गए बेटा, यहाँ पे P-1 आएगा तो यहाँ पे 10 भी तो आएगा. हम भी ना बहुत भुलक्कड़ होते जा रहे हैं आजकल, स्ट्रेस बहुत है, पेपर बहुत पास आ गया है ना. आई टोटली एग्री माई किड्स, डोंट वरी, आई एम विद यू पीपल. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट आउट. सो इट वुड बी B अपॉन A की पावर 5, सिंस 2 and 10 विल गेट कैंसिल, will be equals to B upon A की पावर, और यहाँ से कितना आएगा, P-1/4. Since I know base is same, we can just compare the powers. So 5 is equals to P-1/4. That means 21
is going to be your answer for the value of P. I hope this concept must be clear. एक क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था. इट वॉज नॉट एट ऑल समथिंग जो आप लोग कहो कि मैम डिफ़िकल्ट है या हम सोच नहीं पाए. इसे कहते हैं हलवा क्वेश्चन. अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू अंडरस्टैंड. और ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया था. सो येस, इट इज़ समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल. यू जस्ट बी नोन टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपको CBSE भी दे सकता है. देर इज नथिंग न्यू इन दिस. ओके, let's move towards the next question. Now this is one of the most important questions I would say. ये थोड़ा ट्रिकी भी है. मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल सिंपल है. इसमें कुछ कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को बहुत अच्छे से देखनी थी. If three successive terms of a GP with common ratio r greater than 1 are the length of the sides of a triangle. ये क्या है? सारी length of the side of a triangle है. Three successive terms of a GP. I know three successive terms क्या होती है GP की स्टार्टिंग में. AR स्क्वायर. अगर मैं बोलूँ यही क्या है, ये मेरे पास मेरी साइड्स लेंथ है मेरी साइड्स की ऑफ अ ट्रायंगल वेयर दिस क्लोज ब्रैकेट आर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू आर एंड आई जस्ट हैव टू फाइंड दिस टर्म दैट इज 3 देन GIF ऑफ आर प्लस GIF ऑफ माइनस आर इज इक्वल्स टू. बेटा सबसे पहली चीज़ ये है मेरे पास मेरी 3 सक्सेसिव टर्म्स. ये लेंथ है ट्रायंगल की. सो वी नो दैट सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो इफ आई जस्ट वांट आई कैन जस्ट राइट फर्स्ट केस A plus AR should be greater than AR square. Second case A plus AR square should be greater than AR. Third case AR plus AR square should be greater than your A. एक चीज़ देखो, यहाँ पे R है और R है, कहीं ना कहीं R ग्रेटर देन 1 है और A भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेंथ. ये कहीं ना कहीं मेरे पास क्या है, लेंथ ही तो है. लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहती है. सो ऑब्वियसली जो भी हो यहाँ पे R मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस R का स्क्वायर भी है, तो ये ऑब्वियसली ये ट्रू भी है प्लस R ग्रेटर देन 1 है, तो ये ट्रू ही होगा. सो देयर इज नो नीड टू चेक ऑन दिस. सिमिलरली इफ यू जस्ट सी ओवर है तो मुझे पता है यहाँ पे AR स्क्वायर, यहाँ पे AR है, तो ऑब्वियसली ये खुद की क्वांटिटी ही ग्रेटर देन AR है. सो ऑब्वियसली A इसमें ऐड ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं और इंक्रीज होगा. सो ये भी मेरे पास ट्रू है. नाउ व्हाट अबाउट दिस? फॉर दिस वी हैव टू चेक बिकॉज यहाँ पे है AR greater than AR square. If I want I can just cancel my A from all. So 1 plus R greater than R square. Simplify it a little bit. So it would be R square minus R minus 1 less than 0. Let's try to just simplify this. If I just try to simplify this by using a simple quadratic formula, okay. So R would be equals to minus 1 plus minus root of 1 minus, it would be plus 4 upon 2. So that would be माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2. मेरे पास ये आ गया. एंड सिंस आई नो मेरे पास जो R है वो ग्रेटर देन 1 है, सॉरी, सो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. सो नेगेटिव वाला पार्ट हटा दो. सो माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2. और यहाँ पे माइनस 1 नहीं आएगा सिंस B मेरा क्या है, नेगेटिव था, तो पॉजिटिव हो जाएगा. ये आ गया. बेटा अब मेरे पास R की वैल्यू क्या आएगी वो हम लोग एग्जामिन करते हैं. इफ़ यू जस्ट सी वेरी केयरफुली ओवर हेयर, आई नो जो मेरा R होगा, ओके, समहाउ अ सेम कलर. Which pen should work very good? Oh, okay, this yellow pen is working very good. Okay, so R कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है? So बेटा अगर मैं ढंग से देखती हूँ तो मेरा जो R है वो मेरा कहाँ बिलोंग कर सकता है, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी मेरे पास मेरा कहीं ना कहीं 1 से लेकर, बिकॉज 1 से तो वो स्टार्ट हो रहा है, से लेकर यहाँ तक, दैट इज़ 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2. 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 अगर मैं सॉल्व करती हूँ अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल आएगा मेरे पास 1.5 के. ठीक है. सो देखो बेटा, इट वॉज टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन R. सो आई नो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा R का, इट वुड बी ऑब्वियसली 1 बिकॉज 1.5 है तो 1 पे लाई करेगा. अगर वहीं पे मैं माइनस R के बारे में बात करूँ बेटा, सो माइनस R के लिए हो जाएगा माइनस 1.5, उसके लिए क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा. मुझे बस ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने हैं एंड दैट इज़ माई आंसर. सो मेरा आंसर क्या आएगा, दैट वुड बी 3 into 1 minus 2 and that is equal to 3 minus 2 1. So मेरा आंसर क्या आ गया, 1 is my answer. This was not at all very simple question क्योंकि इसमें चीज़ें एग्जामिन करनी थी. तो हाँ, ये आपको सोचना था, ये सोचना था कि हाँ ये ट्रू ही होगा और फिर आपको ये सब कैलकुलेशन भी करनी थी. सो यस, देयर वाज सम थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. इट वाज नॉट दैट सिंपल आई वुड से, बट स्टिल डूएबल क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. बेसिकली यू नो दैट मैं हर वीडियो के अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन ही कवर करती हूँ सो दैट यू डोंट फील ओवरबर्डन और अपनी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर पाए.
सो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन कवर करे हैं एंड लेट्स एग्जामिन हाउ टू डू इट. द सम ऑफ द सीरीज 1/1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3/1 माइनस 3 की पावर 3 into 3 की power 2 plus 3 की power 4 up to 10 terms. Now, if I just want to write the general term of this sequence, so the general term can be equals to, that can be, if anyone wants to say that, yes, ma'am, your writing is very good, so please, you can compliment me. I would just love to hear that. I know that my writing is actually very good. You can just see over here how neatly I am writing each and every concept and how beautifully I'm explaining you people. If you feel so that yes, the concept is clear and yes, my writing is beautiful, that I already know, but for the concept you can just comment me below, and even for the writing you can just comment me below. Okay, and okay, so that was t की power, so t base t, that is a general term basically. So क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, so obviously यहाँ 1 था, 2 था, 3 था, so कहीं ना कहीं समीशन k आ जाएगा अपॉन, देखो 1 हर बार कॉमन है, सो 1 तो एज इट इज, माइनस यहाँ पे 3 भी कॉमन था, तो 3 इंटू 1 2 3, सो दैट वुड बी के का स्क्वायर, एंड देन प्लस 1 2 3, सो यहाँ पे के की पावर 4, ये आ गया. सो आई कैन जस्ट राइट दिस एज समीशन के अपॉन 1 माइनस 3 इंटू के स्क्वायर प्लस के की पावर 4. Let's try to simplify this. I can just write this as summation k upon k की power 4 plus, sorry, if I just want, I can just split this into minus 2k square minus k square. It is going to form your simple what you want, yeah, that sorry, I just forget that. It will just form your 3k square only. So it would be minus 2k square minus k square, and we are just left with, if you just see one thing very carefully beta, यहाँ मेरे पास 1 है. Okay, yeah, 1 will work wonderfully, plus 1. Okay, ये मेरे पास आ गया. तो एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व करो, if I want I can just combine. यहाँ पे मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करी है बेसिकली, बिकॉज लास्ट टर्म के इक्वल तो वो नहीं होगा ना, बिकॉज इट्स माइनस 2k इंटू के, सो वो ऑब्वियसली -2 फॉर्म करेगा. तो हमें मैंने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को इस तरीके से ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े. ओके, बस मैंने 3k स्क्वायर को लिख दिया, माइनस टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो 3k स्क्वायर आएगा. क्या मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से, दैट इज समीशन k एज इट इज k की पावर, ओके यहाँ पे k की पावर 2 की पावर 2. तो एक चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ से ऑब्जर्व करो, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है एवरीवन, सो प्लीज़ अच्छे से समझना. इफ़ आई वांट आई कैन जस्ट से यू दैट k माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट वुड बी इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 2k, लेट्स टेक इट एज k स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो k की पावर 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 1. क्या मुझे सेम चीज़ नहीं मिल रही, के की पावर 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 1. सो इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर मैं लिखना चाहूँ, सो आई कैन जस्ट राइट इट एज के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से मुझे ये चीज़ मिल गई. येस, ये चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने की थी. नाउ आई नो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दैट वुड बी समीशन k अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 माइनस के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 1 प्लस के स्क्वायर. अभी यहाँ पे k है बेटा, लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2. क्यों किया अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे 2k चाहिए था ताकि मैं जो नीचे है ऊपर वाले को भी कुछ इसी पैटर्न में अपना फॉर्म कर सकूँ. सो आई नो इट वुड बी 1/2, एंड इफ़ आई वॉन्ट बेटा कैन आई जस्ट राइट ओवर हेयर एज के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 माइनस के स्क्वायर माइनस के माइनस 1. ये मैंने कैसे लिखा, इसको जल्दी से सॉल्व करने का एक बार कोशिश करो, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि मैंने इस चीज़ को कैसे लिखा है बेसिकली. सो बेटा यहाँ से अगर मैं देखती हूँ, सो मुझे क्या मिलेगा, सो दैट इज़ योर्स के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 माइनस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1. देखो 1 और 1 कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 2k बचा. तो मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि मेरे पास सिर्फ 2k ही बचे. अब हाँ, इतना आपको सोचना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन.
अगर आप कहो कि मैम इसकी क्या ट्रिक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, देयर इज नो ट्रिक फॉर दिस. ओके, के स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर माइनस 1 प्लस के स्क्वायर. Now let's try to simplify this as much as we can do it. Okay, let's not cancel k square. We actually wanted it. मैंने इमोशंस में आके एकदम कैंसिल कर दिया स्पीड में आकर ही कि ठीक है हो गया. सो 1/2 वी विल राइट सबमिशन लेटर ऑन. उसका बेसिकली इतना काम नहीं आएगा मेरे पास अब. लेट्स टेक देम सेपरेटली. ओके, लेट्स टेक दिस ब्रैकेट सेपरेटली. सो यू विल ऑब्जर्व के स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे के स्क्वायर मैंने शायद गलती से लिख दिया है. Just 1 minute, child. Okay, it was a square. It was a minus b ना. So यहाँ पे k स्क्वायर नहीं आएगा. सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई. यहाँ पे k स्क्वायर नहीं आना था और मैंने गलती से k स्क्वायर लिख दिया है. Yeah, that's it. So observe it now. If I just see k स्क्वायर प्लस k माइनस 1, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ से 1/k स्क्वायर माइनस के माइनस 1 माइनस यहाँ से क्या बचेगा के स्क्वायर माइनस के माइनस 1, ये और ये कैंसिल, यहाँ से बचेगा 1/k स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, सॉरी के स्क्वायर माइनस 1 प्लस के. ये आ गया मेरे पास. अब बस अप टू 10 टर्म्स ही तो है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स है. तो बेसिकली जो मेरा सबमिशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा k इज इक्वल्स टू 1 to 10. जस्ट पुट योर वैल्यू एज 10 एंड देन यू कैन सिंपली ऑब्जर्व योर आंसर दैट आपका आंसर जो है वो ठीक है या नहीं है. So if you just see, it would be 1/100 minus 10 minus 1 minus 1/100 minus 1 plus 10. इसको simplify करना, जो भी आंसर आएगा that is going to be your final answer. So thank you so much kids for being so effective. You can directly contact me on the comments box below. Okay, I'm going to give you the answer for your queries. If anything is not clear to you people, you can just comment me over there, or you can just write whatever you want to write me on rumina_gupta@yahoo.com. please same type karna without any mistake. If you want my email ID on the chat, I will just send it to you. Just tell me that. Okay, thank you so much people. It was a very lovely teaching you all. Thank you so much. It was a little tricky one. The last one was actually very tricky, so just give it one reading very nicely and then you will be able to understand the concept. Thank you so much. Bye bye you all. Stay healthy, stay blessed and keep watching my channel. Thank you.